Pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. Let's compete. Today, I will discuss measurement versus evaluation. It is part 5. In this part, I will discuss functions and different methods of measurement. So, all the important parts I will discuss in this part. Definitely, the session would be interesting one. In this session also you know about the projective techniques, rating scales, attitude scales, taste, inventories. So all these things you must know, different methods of measurement. I explain the functions and methods, then I will discuss 12 MCQs. So till end listen the video. You can get the information, very important informations, and also the MCQs are very tricky. MCQs are there, and also it would be very useful for you. So you see my channel, it is Asit Government Rule Guru. Let's compete. Please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. So my friends, if you see my video, please do not forget to click on the subscribe button, and also you share my channel to your friends and colleagues, and also they can get benefit. You see my WhatsApp number, it is 8327782034. If any queries there, you contact with me and clear your doubt. Again, join my WhatsApp number, it is 8327782034. If any queries there, you contact with me and clear your doubt. So now I am going to discuss first of all, first I discuss about the functions of measurement. So three functions are there: prognosis, diagnostic, and research. So you see, the most important one, Lee J. Cronbach, 1949 classified the functions of measurement. ठीक है, नेम को याद रखना है. जो J. Cronbach actually classified the different functions of measurement. First one is the prognosis function. What will happen in the future? देखिए, prognosis function में सपोज एक मैथमेटिक्स के ऊपर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, मैथ के ऊपर एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है. फॉर व्हाट रीजन एक्चुअली वी कंडक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट ऑन मैथ? क्योंकि इसी टेस्ट से डिटेक्ट होगा कि द स्टूडेंट्स बेसिकली दे वुड बी एबल फॉर इंजीनियरिंग कोर्स इन फ्यूचर. Okay, from this test easily we can detect those are very good in mathematics, so definitely for them engineering course is better. So due to aptitude test conduct on math, then we can detect those students, they secure good marks in mathematics. Then we detect that if they take admission in engineering course in future, then it would be better, right? So like this, जो भी करेंट में हम स्टूडेंट्स का एबिलिटी को जज करेंगे, स्टूडेंट्स का स्किल को जज करके हम फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट करेंगे कि इन फ्यूचर में इन स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स अच्छा होगा, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे अभी जो स्टैंडर्ड 9-10 में जो स्टूडेंट्स एक्चुअली मैथ साइंस अच्छा हो रहा है, हम प्रेडिक्ट करेंगे कि वो ज़्यादातर जो साइंस सब्जेक्ट रखेंगे. अभी तो कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स अकॉर्डिंग टू एनईपी, मगर जो स्टूडेंट्स एक्चुअली मैथ साइंस में अच्छा करेगा वो फ्यूचर में 11th में वो पीसीएम सब्जेक्ट लेकर, पीसीएम और कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट लेकर पढ़ सकता है. तो ये जो प्रोग्नोसिस फंक्शन है, बेसिकली करेंट टेस्ट में हम जब स्टूडेंट्स का एबिलिटी को डिटेक्ट करेंगे तो फ्यूचर के लिए हम प्रेडिक्ट करेंगे कि किस तरीके का कोर्स उसके लिए अच्छा होगा, ठीक है. तो वही है प्रोग्नोसिस फंक्शन. व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर? इट यूजेस प्रेजेंट टेस्ट रिजल्ट्स टू प्रेडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस और बिहेवियर. हम प्रेजेंट टाइम में, करेंट टाइम में टेस्ट कंडक्ट करेंगे और हम फ्यूचर पाथ एक्चुअली प्रेडिक्ट करेंगे, फ्यूचर पाथ ऑफ द चाइल्ड, प्रेडिक्ट करेंगे फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द चाइल्ड.
ठीक है। एग्जाम्पल, एन आईक्यू टेस्ट कैन हेल्प प्रेडिक्ट स्टूडेंट्स लाइकली एकेडमिक परफॉर्मेंस। आईक्यू टेस्ट तो बेसिकली आप जानते हो जो एक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, तो आईक्यू टेस्ट में मैं फॉर्मूला बता चुका हूं, जो हम मेंटल एज लेंगे बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। ओके, तो आईक्यू टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे और प्रेडिक्ट करेंगे कि उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस फ्यूचर में कैसे होगा। तो सभी समय प्रोग्नोसिस फंक्शन मीन्स वो फ्यूचर इट मीन्स प्रेडिक्शन करता है। ओके, प्रेडिक्शन फॉर फ्यूचर, प्रेडिक्शन फॉर फ्यूचर बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, और कुछ दिया है, देखिए, इट इज यूजफुल, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। इट इज यूजफुल फॉर सिलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रमोशन, ग्रेडिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो ये जो प्रोग्नोसिस फंक्शन है, जो प्रेजेंट में हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जैसे आईक्यू टेस्ट हुआ कि एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ, तो ये यूजफुल होगा उनका सिलेक्शन इन फ्यूचर। ठीक है, सिलेक्शन है, क्लासिफिकेशन, प्रमोशन, ग्रेडिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो ये सब के लिए जो फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए इट इज यूजफुल। देखिए, सपोज फॉर एग्जांपल सिलेक्शन, तो अभी जिन स्टूडेंट्स का सपोज एप्टीट्यूड टेस्ट हम कंडक्ट कर रहे हैं मैथ्स फिजिक्स के ऊपर, जिनका अच्छा मार्क आ रहा है मैथ्स फिजिक्स में, तो हम प्रेडिक्ट करते हैं कि उनका फ्यूचर में आईआईटी एनआईटी में उनका इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कि हम ये सोचते हैं कि जिन स्टूडेंट्स का सपोज साइंस पर्टिकुलरली केमिस्ट्री बायो अच्छा हो रहा है, अभी हम टेस्ट कंडक्ट किया, एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट किया, अचीवमेंट टेस्ट कंडक्ट किया मैथ साइंस के ऊपर, हम डिटेक्ट किया कि जो स्टूडेंट्स एक्चुअली साइंस में अच्छा कर रहे हैं, तो फ्यूचर में उनका मेडिकल में सिलेक्शन होगा, वो नीट एग्जाम क्रैक करेंगे और मेडिकल एडमिशन लेंगे। वैसे क्लासिफिकेशन, सो क्लासिफाई हम कर सकते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट में हम क्लासिफाई करेंगे, कोई एप्टीट्यूड टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे प्रेजेंट टाइम में, फिर क्लासिफाई करेंगे कि ये स्टूडेंट्स ह्यूमैनिटीज में जाएगा, ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट रखेगा तो अच्छा है, कि ये स्टूडेंट साइड पीसीएम रखेगा, कंप्यूटर साइंस रखेगा, ठीक है, कि ये स्टूडेंट्स हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी रखेगा तो ठीक करेगा, कि ये स्टूडेंट्स कॉमर्स में ठीक करेगा, तो एक क्लासिफाई करता है बेसिकली। सिमिलरली प्रमोशन रिलेटेड, सपोज चाइल्ड रिलेटेड मैटर में, यदि प्रमोशन इस तरीके का प्रोग्नोसिस फंक्शन में ये कैसे कनेक्ट करता है प्रमोशन, तो वैसा ही हम सोचेंगे कि अभी एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट किया, तो एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करने के बाद, सपोज एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट किया सपोज मैथ्स के ऊपर, तो हम ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे कि फ्यूचर में एक्चुअली द चाइल्ड नाउ सिक्योरिंग गुड मार्क्स इन मैथ्स एंड गुड मार्क्स इन साइंस should definitely he will promote himself in suppose engineering ki medical in future, he will promote himself or her he will promote himself in medical or in engineering course in future। तो promotion means अभी हम एग्जाम कंडक्ट करेंगे, those students actually they do better in maths and science, definitely they will promote themselves in engineering and medical in future, like this। सो ग्रेडिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, अभी जैसे हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे, अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करेंगे, तो जिनका बेटर नहीं होगा उनको काउंसलिंग दिया जाएगा, उसी में हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि नाउ प्रेजेंट टेस्ट कंडक्टेड एंड द चाइल्ड इट मीन सिक्योर लेस मार्क। सपोज अभी एप्टीट्यूड टेस्ट हम अलजेब्रा के ऊपर कंडक्ट करेंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट अलजेब्रा के ऊपर कंडक्ट किया, चाइल्ड का लेस मार्क आया, तो इस कंडीशन में हमको गाइड करना पड़ेगा, हम फ्यूचर में ज्यादा गाइड चाहिए, इन फ्यूचर एक्चुअली दैट चाइल्ड नीड मोर गाइडेंस बाय द टीचर ऑन अलजेब्रा। ओके, और जो स्टूडेंट्स वीक है, ठीक है, उनको जैसे हम एप्टीट्यूड टेस्ट करेंगे, एक एप्टीट्यूड टेस्ट करेंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट में हम डिटेक्ट करेंगे एप्टीट्यूड में क्या है, जैसे हम उसका बिहेवियर, उसका मैनर्स, ये सब चेक करते हैं, तो उसको काउंसलिंग चाहिए। एप्टीट्यूड टेस्ट में सपोज हम डिटेक्ट किया कि कम स्कोर आ रहा है, तो इट मींस द चाइल्ड नीड मोर काउंसलिंग सो दैट ही कैन मॉडिफाई हिज मैनर्स एंड बिहेवियर्स इन फ्यूचर। तो प्रोग्नोसिस वही है, जो करेंट टेस्ट एक्चुअली वो फ्यूचर पाथ क्रिएट करेगा। स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड टेस्ट में हेल्प ए काउंसलर सजेस्ट
whether the student is better suited for science and mathematics or not. सिंपल वर्ड्स, प्रोग्नोसिस, प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस, याद रखिए, ठीक है। इसको ये कुछ एग्जांपल्स में क्लैरिफाई किया। सेकेंड फंक्शन जो है डायग्नोसिस फंक्शन। तो डायग्नोसिस फंक्शन इजी है। डायग्नोसिस फंक्शन क्या है? अभी प्रेजेंट टेस्ट कंडक्ट करेंगे, तो अभी टेस्ट कंडक्ट से हम डिटेक्ट करेंगे स्ट्रेंथ, वीकनेस हम डिटेक्ट करेंगे। जो वीक चाइल्ड है, जिस एरिया में चाइल्ड वीक है, उसके लिए रिमेडियल मेजर्स, रिमेडियल क्लासेस कंडक्ट होगा। तो वही है डायग्नोसिस फंक्शन मींस व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या चाइल्ड का क्या समस्या है एंड व्हाई, तो उसके लिए रिमेडियल मेजर्स होगा। ओके, तो प्रोग्नोसिस फंक्शन व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, व्हाट विल हैपन, तो फ्यूचर, मगर डायग्नोसिस क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाई। इट आइडेंटिफाइज ए स्टूडेंट स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, लर्निंग डिफिकल्टीज एंड देयर पॉसिबल कॉजेस। ये जो डायग्नोस्टिक फंक्शन ये बोल रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है चाइल्ड का स्ट्रेंथ, चाइल्ड का वीकनेस, उसका जो लर्निंग डिफिकल्टीज, ठीक है, एंड पॉसिबल कॉजेस। तो बेस्ड ऑन डायग्नोसिस टीचर्स कैन प्रोवाइड रिमेडियल टीचिंग। तो ये डायग्नोसिस टेस्ट हो गया। डायग्नोसिस टेस्ट में डिटेक्ट हुआ कि द चाइल्ड एक्चुअली वीक इन मैथमेटिक्स, ठीक है, तो उसको रिमेडियल टीचिंग दिया जाएगा मैथमेटिक्स में। कि द चाइल्ड इज वीक इन साइंस, तो रिमेडियल टीचिंग दिया जाएगा साइंस में। तो एग्जाम्पल अब देख लीजिए, इफ ए क्लास 10 स्टूडेंट रिपीटेडली मेक्स मिस्टेक्स इन फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। एक क्लास 10 का चाइल्ड जो आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहा है, तो वीकनेस डिटेक्ट हुआ। तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट कैन आइडेंटिफाई वेदर द डिफिकल्टी इज ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक अलजेब्राइक कॉन्सेप्ट। तो उसमें क्या है, देखिए एग्जांपल, क्लास 10 स्टूडेंट रिपीटेडली मेक्स मिस्टेक्स इन फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो उसमें एक डायग्नोस्टिक टेस्ट कंडक्ट हुआ। उसमें क्यों ये टेस्ट को कंडक्ट किया गया कि उसमें चेक किया जाएगा क्या जो अलजेब्राइक कॉन्सेप्ट है, क्या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है, क्या वो सही से द चाइल्ड उसको समझा है कि नहीं, वेदर द चाइल्ड प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग इट मींस फंडामेंटल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, ठीक है, क्योंकि वो बार बार फैक्टराइजेशन भूल कर रहा है, ठीक है कि नहीं। तो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट एक्चुअली ये डिटेक्ट होगा कि कहां पर डिफिकल्टी है, यदि प्रॉब्लम है कहां पर डिफिकल्टी है, क्यों वो एक्चुअली किस एरिया में वो भूल कर रहा है, कहां पर उसका एरर आ रहा है, तो उसी एरिया के ऊपर एक्चुअली उसको रिमेडियल टीचिंग दिया जाएगा। तो इट हेल्प्स टीचर्स इंप्रूव देयर टीचिंग मेथड्स एंड इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स। उसको देख के टीचर्स क्या करेंगे, उनका टीचिंग मेथड्स को इंप्रूव करेंगे और उनका इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स को भी इंप्रूव करेंगे। तो वही है जो डायग्नोसिस फंक्शन ये बोल रहा है, वो स्ट्रेंथ, वीकनेस, लर्निंग डिफिकल्टीज को डिटेक्ट कर रहा है। हम देख रहे हैं कुछ चाइल्ड बार बार एक्चुअली वो ट्रिगोनोमेट्री में एक्चुअली जो भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं वो भूल कर रहे हैं, तो उसी के ऊपर एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में डिटेक्ट करेंगे क्या डिफिकल्टी लेवल है, क्या वो ट्रिगोनोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वेदर दे अंडरस्टूड प्रॉपरली और नॉट, ठीक है, वो टीचर डिटेक्ट करेगा। देन टीचर क्या करेगा, उसका टीचिंग मेथड को मॉडिफाई करेगा और उसका जो इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स को मॉडिफाई करेगा। तो इन सिंपल वर्ड्स, डायग्नोसिस फाइंडिंग द लर्निंग प्रॉब्लम एंड इट्स कॉज। लर्निंग प्रॉब्लम को फाइंडिंग करेगा और उसका इट्स कॉज, कारण क्या है, डिटेक्ट करेगा कि इस कॉज के वजह से एक्चुअली उसका लर्निंग प्रॉब्लम है, और उसी के ऊपर रिमेडियल मेजर्स कंडक्ट होगा, ठीक है। ये सेकेंड फंक्शन है। थर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रिसर्च फंक्शन, ठीक है। तो रिसर्च फंक्शन बेसिकली टू वेरीफाई साइंटिफिक आइडियाज। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, सपोज एक है कि मैथ के ऊपर अचीवमेंट टेस्ट हुआ, ठीक है। अचीवमेंट, मैथ्स को टीचिंग किया गया ट्रेडिशनल मेथड में, मैथ्स को टीचिंग किया गया डिजिटल टेक्नोलॉजी से। तो दोनों को कंपेयर करके हम अचीवमेंट टेस्ट कंडक्ट किया और डिटेक्ट किया कि द टीचर्स टॉट मैथमेटिक्स बाय यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी इज बेटर देन द टीचर टॉट मैथमेटिक्स थ्रू ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है।
तो उसी में अल्टीमेटली जब डिटेक्ट हुआ, जो रिसर्चर से वो उसके ऊपर एक्चुअली हाइपोथेसिस निकालेंगे कि नो, जो टीचर एक्चुअली टॉट किया था डिजिटल टेक्नोलॉजी से, वो बेटर है। ठीक है, वो बहुत प्रैग्मेटिक है, वो बहुत प्रैक्टिकल है। मगर जब जो टीचर एक्चुअली वो टॉट किया था ट्रेडिशनल मेथड से मैथमेटिक्स को, ठीक है, वो इतना प्रैग्मेटिक, इतना प्रैक्टिकल नहीं है। हम अंडरस्टैंडिंग लेवल देखेंगे। जो टीचर एक्चुअली टॉट किया था डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करके, उसका चाइल्ड का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जो स्किल पावर है, जो एप्लीकेशन बेस्ड जो थिंकिंग पावर है, बेटर है। तो ये रिसर्च फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है टू वेरीफाई साइंटिफिक आइडियाज। द रिसर्च फंक्शन ऑफ मेजरमेंट मीन्स यूजिंग टेस्ट मेजरमेंट्स टू कलेक्ट एक्यूरेट डाटा एंड वेरीफाई और टेस्ट साइंटिफिक। याद रखिए, मेजरमेंट एक्चुअली कुछ एरिया में जो टेस्ट होता है, टेस्ट में जैसे हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट हुआ, टेस्ट का एक पर्टिकुलर स्कोर आता है, वो बायस नहीं है। सपोज एमसीक्यू का टेस्ट हो रहा है, ये टेस्ट एक्चुअली बायस नहीं है, क्योंकि जो एग्जामिनर्स है उनका पर्सनल ओपिनियन से वो चेक नहीं करेंगे। ये एमसीक्यू टेस्ट मींस बहुत ऑब्जेक्टिव टेस्ट मींस एक्चुअली जो स्कोर है वो एक्यूरेट है। ठीक है, तो उस स्कोर को, इस तरीके का स्कोर को एक्चुअली रिसर्च पर्पज के लिए यूज किया जाएगा और हाइपोथेसिस एक्चुअली निकाला जाएगा। फिर उसको वो जो हाइपोथेसिस निकलेगा उसको फिर इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो वही है द रिसर्च फंक्शन ऑफ मेजरमेंट मीन्स, यहां पर द रिसर्च फंक्शन ऑफ मेजरमेंट मीन्स यूजिंग टेस्ट एंड मेजरमेंट्स टू कलेक्ट एक्यूरेट डाटा। ओके, फर्स्ट एक्यूरेट डाटा कलेक्ट करना और वेरीफाई और टेस्ट साइंटिफिक है, फिर हम उससे कुछ साइंटिफिक हाइपोथेसिस हम निकालेंगे। ठीक है, तो मेजरमेंट प्रोवाइड्स ऑब्जेक्टिव एंड डिपेंडेबल डाटा इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन पर्सनल ओपिनियंस और रफ ऑब्जर्वेशंस। क्योंकि मेजरमेंट सभी समय प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्टिव डाटा, डिपेंडेबल डाटा देता है, वो कोई पर्सनल ओपिनियन और रफ ऑब्जर्वेशंस नहीं देता है। क्योंकि इसलिए तो जो टेस्ट स्कोर होता है वो एक ऑब्जेक्टिव डाटा है कि डिपेंडेबल डाटा है, वो डाटा पर्सनल ओपिनियंस और रफ ऑब्जर्वेशंस नहीं है। तो रिसर्चर्स यूज टेस्ट स्कोर्स टू कंपेयर इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, टीचिंग मेथड्स, ट्रीटमेंट्स एंड अदर वेरिएबल्स। तो ये टेस्ट स्कोर को लेकर रिसर्चर ने क्या करेंगे, इंडिविजुअल्स को कंपेयर करेंगे, स्टूडेंट्स को कंपेयर करेंगे, जो ग्रुप्स है स्टूडेंट का, जो डिफरेंट ग्रुप्स है उसको कंपेयर करेंगे, टीचिंग मेथड्स को कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, तो अदर वेरिएबल्स को कंपेयर करेंगे। तो एक्यूरेट मेजरमेंट हेल्प्स रिसर्चर्स ड्रॉ वैलिड कंक्लूजन एंड जनरलाइजेशन। यदि एक्यूरेट मेजरमेंट जो डाटा को, एक्यूरेट मेजरमेंट डाटा को रिसर्चर्स लेके उसको एनालाइज किया, कंपेयर द इंडिविजुअल्स, कंपेयर ऑन द ग्रुप बेसिस, कि कंपेयर द टीचिंग मेथड्स, इसको लेके फिर हाइपोथेसिस की कंक्लूजन को, जनरल जो कंक्लूजन निकाला। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप देख लीजिए, यहां पर एग्जाम्पल दे रहा है कि रिसर्चर में कंपेयर द मैथमेटिक्स अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स टॉट बाय ट्रेडिशनल टीचिंग एंड डिजिटल टीचिंग यूजिंग ए स्टैंडर्डाइज्ड मैथमेटिक्स टेस्ट। एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कंडक्ट हुआ, उसमें दो ग्रुप का स्टूडेंट, जो ग्रुप वन, इसमें मैं थोड़ा एग्जांपल दे देता हूं। जो ग्रुप वन स्टूडेंट है, ये ग्रुप वन स्टूडेंट ट्रेडिशनल मेथड को, उनको जो टीचिंग किया गया है वो ट्रेडिशनल है, मगर ग्रुप टू स्टूडेंट जो है, ग्रुप टू स्टूडेंट को डिजिटल मेथड में टीचिंग किया गया है। तो अभी कॉमन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हुआ, स्टैंडर्डाइज्ड मैथमेटिक्स टेस्ट हुआ, तो वहां पर दो ग्रुप्स, सपोज दोनों ग्रुप के लिए स्टैंडर्डाइज्ड मैथमेटिक्स टेस्ट हुआ, और फिर रिसर्चर्स ने तो मार्क्स को कंपेयर किया, फिर हाइपोथेसिस निकाला कि जो स्टूडेंट्स, द टीचर्स टॉट स्टूडेंट्स थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी, जैसे थ्रू इंटरेक्टिव बोर्ड कि थ्रू ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, वो स्टूडेंट्स एक्चुअली बेटर देन द स्टूडेंट्स टॉट थ्रू ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, तो रिसर्च फंक्शन अल्टीमेटली, इन सिंपल वर्ड्स, यूजिंग मेजरमेंट्स टू कलेक्ट एक्यूरेट डाटा
टेस्ट हाइपोथेसिस, मेक कंपैरिजंस एंड ड्रॉ वैलिड कंक्लूजन। तो इसलिए मेजरमेंट कैसे रिसर्च फंक्शन में मेजरमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक्यूरेट टेस्ट स्कोर को रिसर्चर को चाहिए क्या, एक्यूरेट टेस्ट स्कोर। फिर वो उसको वो स्कोर को देके जो इंडिविजुअली स्टूडेंट्स को एनालाइज करना, ग्रुप वाइज स्टूडेंट को एनालाइज करना, टीचिंग मेथड्स को एनालाइज करना, ठीक है, फिर उससे हाइपोथेसिस निकालना, फिर अल्टीमेटली कंक्लूजन ड्रॉ करना, ये है रिसर्च फंक्शन, ठीक है। मगर इसमें क्वेश्चन इसमें आता है, आप यहां पर मैं दे दिया, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो सेंटेंस है जो ग्रीन में आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजरमेंट इज यूज्ड लेस फॉर रिसर्च पर्पजेस कंपेयर्ड विथ प्रेडिक्शन एंड डायग्नोसिस। देखिए इसमें क्या बोला कि हम तीनों को कंपेयर करेंगे, रिसर्च, प्रोग्नोसिस, प्रेडिक्शन मींस प्रोग्नोसिस, हम तीनों को देखेंगे। इसमें आप देखिए प्रेडिक्शन मींस वो है, प्रोग्नोसिस है, और डायग्नोसिस को देखिए, और रिसर्च को देखिए। इसमें आप देखेंगे ये दोनों में ज्यादातर मेजरमेंट ज्यादा यूज होता है इन कंपैरिजन टू रिसर्च। वही बोला है, मेजरमेंट इज यूज्ड लेस फॉर रिसर्च पर्पजेस कंपेयर्ड विथ प्रेडिक्शन एंड डायग्नोसिस, क्योंकि हम तीनों को कंपेयर करेंगे, तीनों में हम देखेंगे कि जो मेजरमेंट जो यूज होता है ज्यादातर प्रोग्नोसिस, प्रेडिक्शन, डायग्नोसिस में, इन कंपैरिजन टू रिसर्च में जो मेजरमेंट जो स्कोर यूज होता है रिसर्च में, इन कंपैरिजन टू प्रोग्नोसिस एंड डायग्नोसिस इट इज लेस इन रिसर्च। तो उसका कारण भी बता दिया, बिकॉज टेस्ट स्कोर्स आर जनरली ट्रीटेड एज वैलिड इंडिकेटर्स ऑफ ए पर्सन्स कैरेक्टरिस्टिक्स, बिकॉज टेस्ट स्कोर्स आर जनरली। अच्छा आप देखिए हम देखेंगे कि एक अच्छा मोटिवेशनल स्टूडेंट है, हम मोटिवेशन स्कोर हम देखेंगे कि मोटिवेशन, इसके लिए स्कोरिंग हम कर दिया। सपोज आप एटीट्यूड टेस्ट किया, उसको 80 मार्क्स दिया, मोटिवेशन एटीट्यूड टेस्ट करके मोटिवेशन के ऊपर टेस्ट हुआ 80 मार्क्स, और वो स्टैंडर्ड है जो हमारा अचीवमेंट टेस्ट हुआ मैथमेटिक्स में, वो उसमें सपोज 90 मार्क्स रखा। तो उसमें हम ये सोचा कि मोटिवेशन टेस्ट जो द चाइल्ड ज्यादा मोटिवेशनल है वो ज्यादा मैथमेटिक्स में मार्क लाएगा, ऐसे हमें कंक्लूजन ड्रॉ किया कि द स्टूडेंट्स एक्चुअली सिक्योर मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स बिकॉज ही इज मोर मोटिवेशनल वन, ठीक है। तो ये जो है, ये जो मोटिवेशन, ये जो मार्क है, ठीक है, जो अचीवमेंट टेस्ट हुआ 90 मार्क्स, ठीक है, मगर ये जो मोटिवेशन के ऊपर मार्क है कि मैनर्स, मोटिवेशन, फीलिंग, ये जो ऊपर में जो ट्रेट के ऊपर मार्क होता है वो इतना एक्यूरेट नहीं है। तो रिसर्चर्स एक्चुअली इस तरीके का मार्क को लेके एनालाइज करना उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि ये ज्यादातर क्या है, ऑब्जर्वेशन बेस हो जाता है, ओके, एक एस्टिमेट बेस हो जाता है, एक्यूरेट नहीं होता है। हाँ, मैथ्स के ऊपर स्टैंडर्डाइज टेस्ट हुआ कि अचीवमेंट टेस्ट हुआ कि एक एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ, मार्क मिला, वो ठीक है, वो एक्यूरेट है। मगर इस तरीके से हम मार्क दे देंगे कि सपोज मोटिवेशन के ऊपर, ये भी मेजरमेंट बोलता है कि मोटिवेशन के ऊपर जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट में हम बिहेवियर है कि मोटिवेशन है कि मैनर्स है, तो उसके ऊपर हम मार्किंग करते हैं। वो मार्क को रिसर्चर्स एक्चुअली दे डू नॉट टेक इट सीरियसली। तो वही चीज बताया है कि मेजरमेंट का जो यूज ज्यादा यूज होता है प्रेडिक्शन डायग्नोसिस में इन कंपैरिजन टू रिसर्च पर्पजेस। कारण क्या है ना, टेस्ट स्कोर्स आर जनरली ट्रीटेड एज वैलिड इंडिकेटर्स ऑफ ए पर्सन्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पर्सन्स का ट्रेट, पर्सन्स का कैरेक्टरिस्टिक वही है, क्या उसका, देखिए कैरेक्टर, इसमें कैरेक्टर पर्सनालिटी क्या है, और उसका बिहेवियर ये सब आ जाता है, ओके। पर जो स्टूडेंट का पर्सनालिटी क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, तो इसमें भी मार्किंग होता है, टेस्ट है कि इंटेलिजेंस एक ले जाएंगे, इंटेलिजेंस जो आईक्यू टेस्ट होता है, ये सब टेस्ट में जो मार्किंग, ये भी मार्किंग हो रहा है कि नहीं, ये जो मार्किंग हो रहा है
रिसर्चर के लिए ये मार्क को लेके एनालाइज करना और हाइपोथेसिस निकालना ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है। तो इसीलिए तो ज्यादातर एग्जाम्पल देखिए, स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर इज टेकन एज ए वैलिड मेजर ऑफ देयर इंटेलिजेंस। हम इंटेलिजेंस टेस्ट आईक्यू टेस्ट किया, आईक्यू टेस्ट को लेकर हम एक वैलिड टेस्ट इसको बता दिया, देन हम फ्यूचर प्रेडिक्ट किया। द स्कोर कैन देन बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस और डायग्नोज लर्निंग डिफिकल्टीज रादर देन यूजिंग द मेजरमेंट मेनली टू कंडक्ट रिसर्च। देखिए ये जो स्कोर को, ये आईक्यू टेस्ट हुआ, आईक्यू टेस्ट अच्छा एकेडमिक परफॉर्मेंस को हम प्रेडिक्ट करें, आईक्यू टेस्ट अच्छा है तो वो उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा होगा फ्यूचर में, बिकॉज हिज आईक्यू टेस्ट इज गुड वन, ओके, इट इज गिफ्टेड लाइक। सो आईक्यू टेस्ट इज गिफ्टेड लाइक मीन्स he will means do better in future, okay, his performance would be better in academic in future। कि लर्निंग डिफिकल्टीज, आईक्यू स्कोर बहुत कम है तो डिटेक्ट किया लर्निंग डिफिकल्टीज आर देयर, ठीक है, सो दैट रिमेडियल मेजर्स शुड बी टेकन। तो उसमें क्या है, ज्यादातर ये जो एग्जाम्पल में मैं बताया तो ज्यादातर बेसिकली मेजरमेंट का यूज प्रोग्नोसिस, प्रेडिक्शन, डायग्नोसिस में ज्यादा यूज होता है, मगर रिसर्च कंडक्ट रिसर्च, ओके, ये कम यूज होता है रादर देन यूजिंग द मेजरमेंट मेनली टू कंडक्ट रिसर्च। क्लियर है? तो इसमें जो वही बता दी, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो मेजरमेंट एक्चुअली एप्टीट्यूड, देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड के टेस्ट ऊपर टेस्ट होता है, पर्सनालिटी के ऊपर टेस्ट होता है, इंटेलिजेंस के ऊपर टेस्ट होता है। तो ये सब क्या है, ये सब प्रोग्नोसिस डायग्नोसिस के लिए अच्छा है, प्रोग्नोसिस डायग्नोसिस के लिए अच्छा है, मगर वो रिसर्च एक्टिविटी, कंडक्ट रिसर्च के लिए इतना अच्छा नहीं है। तो इसीलिए ज्यादातर मेजरमेंट का जो यूज होता है प्रोग्नोसिस डायग्नोसिस में ज्यादा होता है, मगर रिसर्च में कम होता है, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा याद रखना है। अच्छा चलो इसको कंपैरिजन थोड़ा देखेंगे, प्रोग्नोसिस फंक्शन, डायग्नोसिस फंक्शन एंड रिसर्च फंक्शन, तीनों के ऊपर तो मैं अच्छे से क्लैरिफाई किया, मगर फिर भी थोड़ा कंपैरिजन देख लीजिए। प्रोग्नोसिस फंक्शन आप जानते हो, प्रेडिक्शन फॉर फ्यूचर। डायग्नोसिस एक्चुअली वो आइडेंटिफाई करेगा स्ट्रेंथ, वीकनेस, लर्निंग गैप्स, ठीक है, एंड कॉजेस, लर्निंग गैप्स एंड कॉजेस, इसको ये प्रेडिक्शन फॉर फ्यूचर, लर्निंग गैप्स एंड कॉजेस। और ये क्या करेगा, जो मेजरमेंट स्कोर को यूज करके एनालाइज करेगा और हाइपोथेसिस निकालेगा। तो वेरिफिकेशन ऑफ साइंटिफिक हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज, रिसर्च फंक्शन। अच्छा क्लियर। सेकेंड वन, सिंपल एसोसिएटिव और प्रेडिक्टिव रिलेशनशिप, डायरेक्ट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, ये प्रोग्नोसिस है, ये डायग्नोसिस है। एम्पिरिकल और ऑपरेशनल क्वांटिफिकेशन, ये रिसर्च का है। तो ये तो प्रेडिक्टिव रिलेशनशिप, प्रेडिक्शन, करेंट टेस्ट होगा, वो जो लर्निंग पाथ है चाइल्ड का, फ्यूचर लर्निंग पाथ को डिसाइड करेगा। और ये जो डायग्नोसिस है वो डायरेक्टली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देखेगा कि इट मींस व्हाई इट इज हैपन, व्हाट विल हैपन प्रोग्नोसिस, मगर व्हाई इज इट हैपन, इट इज डायग्नोसिस। और जो रिसर्च है एम्पिरिकल और ऑपरेशनल क्वांटिफिकेशन, वो डाटा मेजरमेंट का स्कोर को लिया, उसको एनालाइज किया इंडिविजुअल्स में, ग्रुप वाइज, टीचिंग मेथड्स को एनालाइज किया, फिर हाइपोथेसिस निकाला, वो हाइपोथेसिस को फिर टेस्ट किया गया कि ये सही होगा कि नहीं, फॉर द फर्दर बेनिफिट ऑफ द चिल्ड्रन। यदि सही हुआ उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, प्राइमरी स्कोप, इंडिविजुअल प्लेसमेंट, सिलेक्शन, ये सब प्रोग्नोसिस में आता है। जो प्रेजेंट टेस्ट होता है, हम फ्यूचर का जो प्लेसमेंट है, कि प्रमोशन है, कि सिलेक्शन है, कि स्ट्रीमिंग, कौन सा स्ट्रीम में जाएगा, ये सब डिसाइड होता है। और इसमें जो डायग्नोसिस में इंडिविजुअल रिमेडिएशन एंड क्लिनिकल इंटरवेंशन, क्योंकि हम वीकनेस, लर्निंग डिफिकल्टीज, ये सब लर्निंग गैप को डिटेक्ट करेंगे और उसके ऊपर इंडिविजुअल रिमेडिएशन होगा, क्लिनिक, वही चीज है क्लिनिकल इंटरवेंशन। और इसमें जो रिसर्च में थर्ड वन जो रिसर्च है, ब्रॉड सिस्टम एवेल्युएशन, वैलिडेशन एंड जनरलाइजेशन, ठीक है। तो वहां पर एवेल्युएशन का, रिसर्च में एवेल्युएशन का बात आ गया, एवेल्युएशन का बात आया कि डाटा कलेक्ट हुआ, क्वांटिटी क्वालिटी प्लस जजमेंट होगा, डाटा के ऊपर जजमेंट होगा
क्योंकि जब हाइपोथेसिस हुआ, उसको टेस्ट किया गया, फिर हम जजमेंट करेंगे। नहीं, इसको ये जो हाइपोथेसिस निकाला इसको अभी यूटिलाइज, जैसे हम बताया कि मैथमेटिक्स एक्चुअली टॉट बाय द टीचर थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी मेथड, मैथमेटिक्स टॉट बाय द टीचर थ्रू ट्रेडिशनल मेथड। एक मैथमेटिक्स के ऊपर स्टैंडर्डाइज टेस्ट हुआ, तो उसमें मार्क को कंपैरिजन करने के बाद डिटेक्ट हुआ कि दो स्टूडेंट्स एक्चुअली basically they got knowledge through digital technology, they are better, they got good marks rather than actually the students who got information through traditional methods. तो अल्टीमेटली हम बोल रहे हैं कि अभी हम डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, ठीक है। तो फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स डिजिटल टेक्नोलॉजी मस्ट बी यूज्ड, है कि नहीं। तो ये सब एवेल्युएशन तो एक जजमेंट का बात भी वहां पर आ जाता है। एजुकेशनल एप्लीकेशन सब होता है जो प्रोग्नोसिस में आईक्यू टेस्ट, एप्टीट्यूड बैटरीज, एंट्रेंस एग्जाम, स्ट्रीमिंग, ये सब होता है प्रोग्नोसिस। इट मींस प्रेडिक्ट द फ्यूचर लर्निंग पाथ, प्रेडिक्ट द लर्निंग डायरेक्शन ऑफ द चाइल्ड। डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। डायग्नोस्टिक क्या है? एक चाइल्ड रिपीटेडली एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मिस्टेक कर रहा है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में चाइल्ड बार बार मिस्टेक कर रहा है, तो उसी के ऊपर एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा। फिर उसका लर्निंग गैप, लर्निंग डिफिकल्टी को डिटेक्ट किया जाएगा, फिर उसका कॉज को डिटेक्ट किया जाएगा, फिर उसके ऊपर रिमेडियल मेजर्स दिया जाएगा। तो इसमें क्या है, रिसर्च में कोई न्यू करिकुलम है उसको टेस्ट किया जाएगा और एवेल्युएट किया जाएगा, टीचिंग मेथड्स, ठीक है। टेस्टिंग न्यू करिकुलम, एवेल्युएटिंग टीचिंग मेथड्स, ये सब रिसर्च में आ जाता है। अच्छा, की एडवांटेजेस देखेंगे इसमें। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन, प्रोग्नोसिस में एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफाई, हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि आगे में उसका क्या फ्यूचर लर्निंग पाथ रहेगा, किस एरिया में वो जाएगा चाइल्ड। अभी प्रेजेंट टेस्ट हुआ, फ्यूचर में वो कौन सा कोर्स एक्चुअली अडॉप्ट करने से ठीक होगा। इसमें करेक्टिव इंस्ट्रक्शन, क्योंकि उसका वीकनेस है, उसका लर्निंग गैप है, लर्निंग इट मींस डिफिकल्टी है, उसको डिटेक्ट किया गया, उसको रेक्टिफिकेशन, रिजरेक्शन व करेक्टिव मेजर्स यहां पर लिया जाएगा, उसका टारगेट है। और जो रिसर्च में ऑब्जेक्टिव डिपेंडेबल डाटा, अच्छा डाटा, जो ऑब्जेक्टिव डाटा, एक्यूरेट डाटा लेके उसको एनालाइज किया जाएगा। सब्जेक्टिव इंप्रेशंस नहीं है, सब्जेक्टिव में कोई पर्सनल बायस ऐसे नहीं है, कोई ऐसे ओपिनियन दे दिया हम ले जाएंगे, कोई जजमेंट करके दे दिया वो स्कोर को लेके हम एनालाइज करेंगे, वो नहीं है। वो जो स्कोर को लेंगे मेजरमेंट का, वो ऑब्जेक्टिव होगा और बहुत डिपेंडेबल डाटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, हम डिफरेंट मेथड्स को देखेंगे, डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आ रहा है। सो फर्स्ट देखेंगे टेस्ट, ठीक है। फर्स्ट वन है टेस्ट। ए टेस्ट इज ए सेट ऑफ क्वेश्चंस और टास्क यूज्ड टू मेजर ए पर्सन्स एबिलिटी, नॉलेज, ट्रेड्स। देखिए, जो टेस्ट कंडक्ट हो रहा है सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है, पर्सन्स एबिलिटी, चाइल्ड का, स्टूडेंट का एबिलिटी को हम डिटेक्ट करेंगे। तो उसके लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, सपोज हम मैथ्स के ऊपर उसका क्या एबिलिटी है, तो उसके ऊपर एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होगा मैथमेटिक्स के ऊपर। वैसे ही नॉलेज और जैसे हम आईक्यू टेस्ट करेंगे, आईक्यू टेस्ट, उससे ये एक इंटेलिजेंस टेस्ट है, उसका क्या इट मींस एप्टीट्यूड है, उसका क्या इंटेलिजेंस है, उसको हम डिटेक्ट करेंगे, आईक्यू टेस्ट है। और ट्रेड्स, जैसे मैं बताया, एप्टीट्यूड टेस्ट है, इट मींस पर्सनालिटी टेस्ट है, ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट है। सो डिफरेंट ट्रेड्स का भी टेस्ट है। आप ये मत समझिए ओनली हम अकेडमिक सब्जेक्ट के ऊपर टेस्ट होगा, ये इसके ऊपर भी हो रहा है। आज देखिए, अचीवमेंट टेस्ट तो होता है नॉर्मली, सब्जेक्ट के ऊपर होता है अचीवमेंट टेस्ट। सपोज मैथ्स के ऊपर टेस्ट हुआ और चाइल्ड स्कोर 80 मार्क्स, तो हम इसका अचीवमेंट को डिटेक्ट करेंगे कि चाइल्ड का लेवल क्या है। ओके, व्हाट इज द लेवल ऑफ द चाइल्ड इन मैथमेटिक्स, देन अगेन हाउ कैन ही इंप्रूव, इट मीन्स व्हाट टाइप ऑफ मेजर्स शुड बी टेकन सो दैट ही क्रॉस एटलीस्ट 90 मार्क। तो अचीवमेंट टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट जो है आईक्यू टेस्ट है, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट है। एप्टीट्यूड में क्या है, जैसे आपका जो लिकर्ट स्केल में बताया था एप्टीट्यूड, सॉरी, इसमें और एक बार देख लीजिए। अचीवमेंट तो हो गया, अचीवमेंट कोई सब्जेक्ट के ऊपर आप टेस्ट कंडक्ट करेंगे, जैसे सपोज मैथ्स के ऊपर
टेस्ट कंडक्ट किया, सपोज चाइल्ड का मार्क 80 आया, तो उसका लेवल क्या है, क्यों उसका मार्क्स मोर देन 90 नहीं आ रहा है, तो उसका मैथ्स में उसका लेवल क्या है, ठीक है, हम अचीवमेंट टेस्ट से डिटेक्ट करेंगे। इंटेलिजेंस टेस्ट जो है आईक्यू टेस्ट, ओके, आईक्यू टेस्ट, ये भी लर्निंग पाथ को डिसाइड करेगा, क्योंकि जिनका आईक्यू टेस्ट होगा, जिनका आईक्यू टेस्ट से कम मार्क मिलेगा, तो हम ये देखेंगे कि उनका कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज है, लर्निंग डिफिकल्टीज है, तो उसके ऊपर क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिमेडियल मेजर्स शुड बी टेकन, ओके, कि जिनका गिफ्टेड स्टूडेंट है, आईक्यू टेस्ट में बहुत अच्छा हुआ, तो डेफिनेटली देयर फ्यूचर वुड बी ब्राइट वन, देयर एकेडमिक फ्यूचर वुड बी ब्राइट वन इन फ्यूचर। तो वैसे ही आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, ये क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है, सपोज मैथ्स के ऊपर एप्टीट्यूड टेस्ट आप करेंगे, तो एबिलिटी, एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या डिटेक्ट होगा, पोटेंशियल और एबिलिटी, चाइल्ड का पोटेंशियल और एबिलिटी टू लर्न और परफॉर्म ए पर्टिकुलर स्किल इन द फ्यूचर, ओके। हम एप्टीट्यूड टेस्ट से डिटेक्ट करेंगे कि चाइल्ड का एबिलिटी, सपोज एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है रीजनिंग के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर, कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर, ओके, एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है, तो उसमें क्या है, हम चेक करेंगे जो स्टूडेंट का पोटेंशियल और एबिलिटी टू लर्न, उसका क्या पोटेंशियलिटी है, क्या एबिलिटी है टू लर्न और परफॉर्म एक पर्टिकुलर स्किल में, ओके, ए पर्टिकुलर स्किल इन द फ्यूचर। फिर हम फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, यदि देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट में मैथ्स में अच्छा मार्क आ रहा है, तो फ्यूचर क्या होगा, डेफिनेटली he must join engineering course in future, in posturing time he should join engineering course। तो ये जो डिटेक्ट होता है एप्टीट्यूड टेस्ट आता है, तो हम चाइल्ड का पोटेंशियलिटी एबिलिटी को डिटेक्ट करेंगे एप्टीट्यूड टेस्ट से, एंड देन एक्चुअली ड्यू टू दैट टेस्ट एक्चुअली it decide the future, it means selection of the child, it decide actually in which course actually would be better for the child in future, ठीक है। पर्सनालिटी टेस्ट है, पर्सनालिटी जैसे आपका सपोज ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ओके, कि ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, ये इसके ऊपर हम पर्सनालिटी टेस्ट से डिटेक्ट करेंगे वो कितना ऑनेस्ट है पर्सन, कितना उसके पास इंटीग्रिटी है, कितना वो ट्रांसपेरेंट है, कितना वो कोऑपरेटिव है, कितना वो कोऑपरेटिव है, कितना उसके पास लीडरशिप क्वालिटी है, कितना सपोर्टिव है, ठीक है, ये सब पर्सनालिटी टेस्ट से आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वन क्रिएटिविटी टेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिविटी टेस्ट से भी जिसका सपोज ज्यादा मार्क मिला वो बहुत क्रिएटिव है, उसका इमेजिनेशन अच्छा है, उसका थिंकिंग जो लॉजिकल पावर बहुत अच्छा है, सो डेफिनेटली ही विल डू बेटर इन सम वोकेशनल कोर्स इन फ्यूचर, सो ही मस्ट ज्वाइन मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, एनी अदर मैनेजमेंट की, लॉ, प्रोफेशनल कोर्स को जाना चाहिए, जिसका क्रिएटिव की म्यूजिक, सपोज म्यूजिक है कि आर्ट है, तो उसको क्रिएटिव टेस्ट से हम डिटेक्ट करेंगे कितना, किस एरिया में उसका इमेजिनेशन अच्छा है, किस एरिया में उसका जो थिंकिंग प्रोसेस बहुत अच्छा है, तो उस वोकेशनल कोर्स में वो जाएगा। जैसे यहां पर एग्जांपल दिया है कि एक क्लास 10 मैथमेटिक्स टेस्ट मेजर स्टूडेंट्स अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स एंड देन एक्चुअली इट डिसाइड द, यदि मैथमेटिक्स में अच्छा है तो डेफिनेटली ही मस्ट गो फॉर इंजीनियरिंग, बेसिकली इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट वन है इन्वेंटोरीज। इन्वेंटोरीज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन। इन्वेंटोरीज आर क्वेश्चनेयर्स और स्टेटमेंट्स यूज्ड टू मेजर स्पेसिफिक इंटरेस्ट, पर्सनालिटी ट्रेट और प्रिफरेंसेस। यहां पर क्या है, इन्वेंटोरीज में क्वेश्चनेयर्स, डिफरेंट वेरी क्वेश्चनेयर, आप जानते हो क्वेश्चनेयर में सिंपल क्वेश्चंस, देयर इज नो बायस क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस शुड नॉट बी इन कंफ्यूजन और क्वेश्चंस इन लॉजिकल सीक्वेंस, तो ये सब है क्वेश्चनेयर। इन्वेंटोरीज आर क्वेश्चनेयर्स और स्टेटमेंट्स, कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट को हम मेजर करेंगे, पर्सनालिटी ट्रेट को मेजर करेंगे, प्रिफरेंसेस को मेजर करेंगे, ठीक है। एग्जांपल्स देखिए, इंटरेस्ट इन्वेंटोरी, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चनेयर्स प्रिपेयर किया जाएगा और पूछा जाएगा, तो मेजर्स स्टूडेंट्स इंटरेस्ट,
क्वेश्चनियर में एस और नो सिंपल क्वेश्चंस होता है, सिंपल क्वेश्चंस एस और नो ऐसे होता है। तो इंटरेस्ट इन्वेंटरी, मेजर स्टूडेंट्स इंटरेस्ट कि डू यू हैव इंटरेस्ट ऑन म्यूजिक, एस और नो। डू यू हैव इंटरेस्ट ऑन आर्ट, एस और नो। डू यू हैव इंटरेस्ट ऑन कंप्यूटर साइंस, एस और नो। सो उसमें हम डू यू हैव इंटरेस्ट ऑन मैथमेटिक्स, एस और नो। तो उसमें हम डिटेक्ट कर पाएंगे किस एरिया में उसका इंटरेस्ट है। पर्सनालिटी इन्वेंटरी, जो मेजर्स पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था, पर्सनालिटी जो है ऑनेस्टी है, उसमें आ जाएगा आपका सपोज कितना वो ट्रांसपेरेंट है, उसके पास कितना इंटीग्रिटी वो है, कितना सपोर्टिव है, कितना कोऑपरेटिव है। ठीक है, तो ये सब पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हम मेजर कर पाएंगे पर्सनालिटी इन्वेंटरी। उसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, उसी रिलेटेड से हम डिटेक्ट करेंगे कि वो पर्सन कितना ऑनेस्ट है। क्वेश्चनियर प्रिपेयर करेंगे और वो आंसर ओनली सिंपल बहुत रहेगा, एस और नो में। उसी से हम डिटेक्ट करेंगे कि वो कितना ऑनेस्ट है, ओके, कितना सपोर्टिव है, कितना कोऑपरेटिव है, कितना उसके पास लीडरशिप क्वालिटी है। ठीक है, तो कितना उसके पास इट मींस डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, कितना उसके पास सपोज जजमेंट एबिलिटी है, उसको सब पर्सनालिटी इन्वेंटरी में डिटेक्ट कर पाएंगे। तो एग्जांपल, एन इंटरेस्ट इन्वेंटरी में शो वेदर ए स्टूडेंट इज मोर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, साइंस, स्पोर्ट्स और आर्ट्स। तो ऐसे क्वेश्चनियर स्टेटमेंट्स फ्रेम किया जाएगा, उसी से हम डिटेक्ट करेंगे कि चाइल्ड का इंटरेस्ट कहां पर है, तो वो इंटरेस्ट इन्वेंटरी। वैसे क्वेश्चन हम फ्रेम करेंगे, वो डिटेक्ट करेंगे पर्सनालिटी ट्रेट्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेकेंड मेथड ऑफ मेजरमेंट है। चलो नेक्स्ट वन, ऑब्जर्वेशन। देखिए कुछ कुछ चीज है जो टेस्ट से हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो डिटेक्ट कर पाएंगे थ्रू ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन मींस सिस्टमेटिकली वॉचिंग एंड रिकॉर्डिंग ए पर्सन्स बिहेवियर। सिस्टमेटिकली हम ऑब्जर्व करेंगे उसको, सिस्टमेटिकली वेरी डीपली इनविटरेटली हम वॉच करेंगे और रिकॉर्डिंग करेंगे पर्सन। जैसे एनेक्डोटल रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो होता है, हम चाइल्ड का बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, ओके, कुछ पॉजिटिव बिहेवियर, कुछ नेगेटिव बिहेवियर, उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो उसी से हम रिकॉर्ड करने के बाद हम डिटेक्ट करते हैं कि उसका क्या, किस तरीके का बिहेवियर है, ओके, किस एरिया में उसका जो बिहेवियर बहुत एडवर्स है, किस एरिया में उसका बिहेवियर पॉजिटिव है। ठीक है, तो इट इज यूजफुल फॉर ट्रेट्स दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इजीली थ्रू टेस्ट। ऐसा कुछ ट्रेट है जो नॉर्मली जो टेस्ट होता है, वो टेस्ट से एक्चुअली हम वो रिवील नहीं होगा, टेस्ट से वो डिस्क्लोज नहीं होगा इंफॉर्मेशन प्रॉपरली। तो जैसे ऑनेस्टी है, पंक्चुअलिटी है, परसिस्टेंस है, ट्रूथफुलनेस है, इसको डीपली हम ऑब्जर्व करेंगे। तो चाइल्ड कितना ऑनेस्टी है, कितना पंक्चुअल है, कितना उसका परसिस्टेंस एफर्ट है, कितना वो ट्रूथफुलनेस है उसके पास, तो इसको हम डीपली वॉचिंग करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, यहां पर दो चीज है, एक पार्टिसिपेंट है, एक नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर देखिए पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है। देखिए मैं इसको क्लैरिफाई करता हूं। पार्टिसिपेंट क्या है, जो खुद ऑब्जर्व कर रहा है, द पर्सन हु ऑब्जर्व, वो भी प्रोजेक्ट में है, तो वो ऑब्जर्वेशन प्लस एक्टिविटी, एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व है प्लस ऑब्जर्व कर रहा है, प्लस ऑब्जर्व कर रहा है, वो एक पार्टिसिपेंट है। जैसे टीचर, कोई एक्टिविटी चल रहा है, कोई ग्रुप एक्टिविटी चल रहा है, टीचर भी एक वहां पर एक मेंबर है, टीचर सजेशन दे रहा है, टीचर स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहा है, टीचर स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा है, तो एक्टिव, फिर वो स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व भी कर रहा है, तो एक्टिविटी में इन्वॉल्व है प्लस ऑब्जर्व कर रहा है, वो पार्टिसिपेंट। नॉन पार्टिसिपेंट ओनली ऑब्जर्व, ओनली ऑब्जर्व, कोई एक्टिविटी में रोल नहीं है। टीचर क्या है, आउटसाइड से वो ओनली स्टूडेंट्स का बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, ओके, डायरेक्टली ही डज नॉट इन्वॉल्व इन एक्टिविटी। तो कोई ऐसा, ये जो बताया पार्टिसिपेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, जो टीचर भी एक मेंबर है, टीचर गाइडिंग द स्टूडेंट्स, टीचर मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स। ठीक है, और सेम टाइम टीचर ऑल्सो ऑब्जर्व द स्टूडेंट्स। तो नॉन पार्टिसिपेंट कि टीचर इज नॉट इन्वॉल्व इन एक्टिविटी, बट फ्रॉम आउटसाइड एक्सटर्नली द टीचर ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो दो प्रकार का ऑब्जर्वेशन है, पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट। जैसे ए टीचर ऑब्जर्व्स वेदर स्टूडेंट रेगुलरली कंप्लीट्स वर्क ऑन टाइम, ए टीचर ऑब्जर्व्स वेदर स्टूडेंट रेगुलरली कंप्लीट्स वर्क ऑन टाइम और नॉट। तो इसमें ऑब्जर्वेशन कभी कभी क्या है,
through test actually it means we can't measure some traits like honesty, punctuality, persistence, truthfulness. तो इसके लिए क्या है, डीपली वॉचिंग एंड रिकॉर्डिंग. ठीक है, ये थर्ड मेजरमेंट मेथड था, ऑब्जर्वेशन. नेक्स्ट वन, इंटरव्यू. आप देखेंगे जो टॉप इंटरव्यू होता है, जो एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में वही है पर्सनालिटी टेस्ट. यदि नॉर्मली टेस्ट होगा, आपका इनर फीलिंग्स को आप कॉपी में यू डू नॉट राइट योर इनर फीलिंग्स इन द कॉपी. मगर जब आप जो मेंबर्स है, इंटरव्यू बोर्ड का मेंबर्स के सामने बैठेंगे और वो बहुत सपोर्टिव होते हैं, एक बढ़िया एनवायरमेंट, कॉन्जेनियल, वेरी हेल्दी एनवायरमेंट होता है और बहुत सपोर्टिव होते हैं. और जो इंटरव्यू मेंबर्स होते हैं बहुत लाफेबल फेस होता है. तो उसमें क्या है, आपको जो क्वेश्चन पूछेंगे, आपका इनर फीलिंग्स को आप वहां पर रिवील करते हो, डिस्क्लोज करते हो. तो इंटरव्यू का मतलब वही है, एक जो पर्सन को वो इतना सपोर्टिव एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं, इतना हेल्दी कॉन्जेनियल एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं कि जो कैंडिडेट है उसका जो फीलिंग्स है, उसका जो ओपिनियंस है, उसका जो एक्सपीरियंसेस है, उसका जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है, यदि वो टेस्ट कंडक्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, वो डिस्क्लोज नहीं करेगा. मगर जब वो ही सिट इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यू एक्चुअली बोर्ड मेंबर्स, देन he can express his feelings, opinions, experiences and personal problems. Okay, तो वो वही है इंटरव्यू. An interview is a face to face interaction between an interviewer and interviewee to obtain information. तो इसको स्पेशली क्यों यूज किया जाता है ना, इट इज स्पेशली यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग फीलिंग्स, ओपिनियंस, एक्सपीरियंसेस एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स दैट मे नॉट, ये बहुत, दैट मे नॉट बी रिवील्ड, दैट मे नॉट बी रिवील्ड थ्रू टेस्ट. यदि कोई रिटन टेस्ट कंडक्ट होगा तो उसमें आपका जो फीलिंग्स है, ओपिनियंस है, एक्सपीरियंसेस है, पर्सनल प्रॉब्लम्स आप ठीक से डिस्क्राइब नहीं करेंगे. मगर जब आप आज इंटरव्यू, व्हेन यू सिट इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर, देन यू कैन एक्सप्रेस, बिकॉज वो एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट होगा, वो एक बढ़िया, बहुत हेल्दी एनवायरमेंट होता है. और वो जो मेंबर्स होते हैं, बोर्ड मेंबर्स, बहुत सपोर्टिव होते हैं. तो उसमें क्या है, आप आपका फीलिंग्स, ओपिनियंस, जो पर्सनल प्रॉब्लम्स, उनके सामने आप डिस्क्लोज कर सकते हो. तो एग्जांपल, ए टीचर इंटरव्यूज ए स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड व्हाई द स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग पुअरली इन मैथमेटिक्स. आपका मैथमेटिक्स में कम मार्क आ रहा है, तो एक टीचर इंटरव्यू लिया एक स्टूडेंट और ऐसा क्वेश्चन पूछा कि जो हमारा मेन पर्पस था कि क्यों ये चाइल्ड एक्चुअली मैथमेटिक्स में उसका जो परफॉर्मेंस पुअर है. तो उसमें ये टीचर इंटरव्यू द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड, वो ये सोचकर इंटरव्यू ले रहा है, पूछ रहा है कुछ क्वेश्चन फेस टू फेस कि ये स्टूडेंट क्यों मैथमेटिक्स में पुअर है. तो उसमें वो इनर फीलिंग्स बताएगा कि जब मैथमेटिक्स क्लास में एक्चुअली आई कुड नॉट अंडरस्टैंड प्रॉपरली, कि आई कुड नॉट प्रैक्टिस, इट मींस मोर बीट्स ऑफ मैथ, कि आई एम हैविंग नो इंटरेस्ट ऑन मैथ्स. ठीक है, कि आई नीड एक्चुअली ट्यूटर, कि आई नीड एक्चुअली स्पेशल एक्चुअली रिमेडियल क्लासेस. तो वो जो उसका इनर फीलिंग से, प्रॉब्लम से, वो बताएगा. ये जो लास्ट में ये जो सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, द इंटरव्यू शेड्यूल्स मे बी यूज्ड, ये देखिए, एंड द इंटरव्यूअर थ्रू ए बेटर पर्सनल सपोर्ट, एक बढ़िया सपोर्ट मिलता है. जब आप बैठेंगे बोर्ड मेंबर्स के सामने, वो बहुत सपोर्टिव होते हैं और एक एटमॉस्फेयर बहुत पीसफुल, बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर होता है. तो उसमें क्या है, तो ये जो एटमॉस्फेयर, सपोर्टिव एटमॉस्फेयर और ये जो हेल्दी एटमॉस्फेयर में आपका जो इनर फीलिंग्स को आप वहां पर रिवील करते हो, ये इनर फीलिंग्स ऑफ द इंटरव्यू थ्रू केयरफुली प्लान्ड इंटरव्यूज. ठीक है, यही है. जो आप, कोई टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट, आपका फीलिंग्स को आप वहां पर पूरा एक्सप्रेस नहीं करोगे. मगर जब बोर्ड मेंबर के सामने बैठोगे, जो बहुत सपोर्टिव होता है और एक अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, तो उसमें आपका जो इनर फीलिंग्स है आप डिस्क्लोज कर सकते हो. तो ये स्पेशलिटी है इंटरव्यू. नेक्स्ट वन, चेकलिस्ट. चेकलिस्ट में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेटिंग स्केल और चेकलिस्ट, इसमें क्या अंतर है. चेकलिस्ट में क्या है, आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, यस और नो में आपको रेस्पॉन्स करना है. ठीक है, तो ये चेकलिस्ट इज ए लिस्ट ऑफ आइटम्स, ऐसे कुछ लिस्ट ऑफ आइटम्स होगा फॉर व्हिच ए रेस्पॉन्स इज जनरली यस और नो, प्रेजेंट और एब्सेंट, यही देना है और कुछ नहीं. ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर इवैल्यूएटिंग, जैसे स्कूल बिल्डिंग्स, टेक्स्ट बुक, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स, प्रोग्राम्स, इसी के ऊपर एवैल्यूएशन के लिए क्वेश्चंस पूछा जाएगा. ओनली यस और नो रहेगा.
जैसे आइटम में क्लासरूम इज क्लीन, आपको एस एस है तो टिक लगाना है, नो है तो नो में टिक लगाना है। ब्लैक बोर्ड इज अवेलेबल, एडिक्वेट लाइटिंग अवेलेबल। तो ऐसे चेकलिस्ट में ऐसे क्वेश्चंस होता है, खाली एस और नो आपको देना है, क्योंकि यहां पर एवेलुएट करना है जो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। क्या क्लासरूम इज क्लीन, ब्लैक बोर्ड इज अवेलेबल, एडिक्वेट लाइटिंग, इंटरेक्टिव बोर्ड इज देयर इन द क्लासरूम, teachers using PowerPoint presentation in the classroom, teachers using the blackboard properly, teachers taking the students to the smart classroom. Okay, so ऐसे normally yes or no आपको only देना है कि it means in lab period teachers it means explain about some experiments, तो ऐसे yes or no आपको यहां पर देना है चेकलिस्ट में, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वन आ जाएगा रेटिंग स्केल। ये रेटिंग स्केल में क्या है, ये रेटिंग स्केल मेजर्स द डिग्री और लेवल ऑफ ए पर्टिकुलर क्वालिटी और ट्रेट। एक पर्टिकुलर क्वालिटी और ट्रेट का डिग्री और लेवल क्या है। एग्जांपल देखिए, ए स्टूडेंट्स क्लासरूम बिहेवियर में बी रेटेड ऑन ए 5 पॉइंट स्केल। उसका बिहेवियर को हम स्टूडेंट्स क्लासरूम में चाइल्ड का क्या बिहेवियर है उसके ऊपर हम 5 रेटिंग करेंगे। जैसे रेटिंग में इसमें 1 रहेगा, पुअर 1, बिलो एवरेज 2, एवरेज 3, रेटिंग रहेगा गुड के लिए 4, रेटिंग रहेगा वेरी गुड के लिए 5, ऐसे रेटिंग रहेगा। फिर हम चाइल्ड बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे, फिर रेटिंग करेंगे कि बहुत अच्छा है वेरी गुड 5 मार्क 5 रहेगा, गुड है 4 रहेगा, एवरेज 3 रहेगा, बिलो एवरेज 2 रहेगा, पुअर 1 रहेगा। तो ऐसे हम एक पर्टिकुलर ट्रेट का क्वालिटी का डिग्री क्या है, लेवल क्या है, तो उसको हम न्यूमेरिकल स्कोर में मेजर करेंगे, ठीक है। जो ट्रेट है इसमें देखिए रेटिंग स्केल में पर्टिकुलर ट्रेट है, पर्टिकुलर ट्रेट को, ठीक है, हम ऑब्जर्व करेंगे और रेटिंग करेंगे। जो स्केल 1 to 5 रेटिंग स्केल है इसमें हम रेटिंग करेंगे। जैसे यहां पर मैं बताया वेरी गुड, गुड, एवरेज, बिलो एवरेज, पुअर, इसको रेटिंग करेंगे। तो पर्टिकुलर जो ट्रेट है उसका क्वालिटी को डिग्री में और लेवल में मेजर किया जाएगा, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड टू असेस पर्सनालिटी, रेटिंग स्केल हम पर्सनालिटी सपोज असेस करेंगे, बिहेवियर, कोई पर्टिकुलर ट्रेट, स्कूल कोर्सेस, प्रैक्टिसेस, प्रोग्राम्स, वही रेटिंग स्केल रहेगा। सपोज जैसे मैं बताया था अभी बिहेवियर में वेरी गुड, गुड, एवरेज, ऐसे हम पर्सनालिटी में देंगे। जिसका बहुत अच्छा पर्सनालिटी 5, वेरी गुड पर्सनालिटी 5, गुड पर्सनालिटी जैसे वेरी गुड 5, गुड 4, एवरेज 3, बिलो एवरेज 2, और पुअर पर्सनालिटी 1, लाइक दिस, ठीक है। तो पर्टिकुलर ट्रेट का क्वालिटी को हम डिग्री और लेवल में मेजर करेंगे, ठीक है। सो इट कैन बी यूज्ड टू असेस, क्लियर डिफरेंस है। चेकलिस्ट खाली क्वालिटी देखेंगे, क्वालिटी है कि नहीं। चेकलिस्ट वही बिल्डिंग में कि हम जैसे ब्लैक बोर्ड अवेलेबल इन द क्लासरूम, वाटर फैसिलिटी इज अवेलेबल इन द एकेडमिक ब्लॉक, पावर फैसिलिटी अवेलेबल इन द एकेडमिक ब्लॉक, रैंप फैसिलिटी अवेलेबल फॉर द चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। तो ओनली हम क्वालिटी को, इज द क्वालिटी प्रेजेंट और नॉट, यस और नो। मगर रेटिंग स्केल में क्या है, वो क्वालिटी का डिग्री और लेवल को हम देखेंगे। पर्टिकुलर जो बिहेवियर है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, पुअर बिहेवियर, बिलो एवरेज बिहेवियर, गुड बिहेवियर, वेरी गुड बिहेवियर, ऐसे टू व्हाट डिग्री इज द क्वालिटी प्रेजेंट, ठीक है। तो ये डिफरेंस है चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल में। नेक्स्ट वन, एटीट्यूड स्केल्स। ये जो एटीट्यूड है मैं बताया था कि लिकर्ट स्केल है, एटीट्यूड स्केल, लिकर्ट स्केल, यानी कोई स्टेटमेंट है आई एंजॉय लर्निंग मैथमेटिक्स, तो उसके ऊपर ऐसे एक सेंटेंस है, उसको हम करेंगे स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल, अनडिसाइडेड, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, ऐसे रहेगा। एक सेंटेंस आप दे दो, फिर चाइल्ड को पूछो क्या है, और ऑप्शन से द स्टूडेंट में रेस्पॉन्ड स्ट्रांगली एग्री, तो कोई बोलेगा नहीं एग्रीड, कोई बोलेगा न्यूट्रल, ओके, कोई बोलेगा डिसएग्री, आई एंजॉय लर्निंग, डिसएग्री, मुझे मैथमेटिक्स मेरा, कभी कभी सम स्टूडेंट्स यू आस्क ना, ओ चाहिए मैथमेटिक्स इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, आई एम नॉट एंजॉयिंग इन मैथ पीरियड, ओके, सो आई एम नॉट इन गुड मूड इन मैथमेटिक्स पीरियड, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। तो ऐसे ये जो है एटीट्यूड स्केल्स। तो एन एटीट्यूड स्केल मेजर्स पर्सनल फीलिंग्स,
एक पर्सन का फीलिंग्स, ओपिनियंस और एटीट्यूड टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट, ओके, टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट क्या उसका एटीट्यूड है, सब्जेक्ट के ऊपर क्या एटीट्यूड है, आइडिया के ऊपर क्या एटीट्यूड है, इंस्टीट्यूशन और पर्सन के ऊपर क्या एटीट्यूड है। तो ये है एटीट्यूड स्केल, यहां पर यूज होता है। तो मेजरिंग ए स्टूडेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स मैथमेटिक्स, टुवर्ड्स सब्जेक्ट। तो यहां पर एक पर्सन का फीलिंग को मेजर किया जाएगा, एटीट्यूड, ओके। और हम ओपिनियंस और एटीट्यूड टुवर्ड्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के प्रति क्या एटीट्यूड है, आइडिया के, एक आइडिया आप दे दो, क्या एटीट्यूड है, इंस्टीट्यूशन के प्रति क्या एटीट्यूड है, एक अदर पर्सन के प्रति क्या एटीट्यूड है। तो यहां पर ये एटीट्यूड स्केल्स हम यूज करते हैं ऐसे, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, अनडिसाइडेड, डिसएग्री, स्ट्रांग डिसएग्री। तो उसको ऐसे मार्किंग भी करते हैं, जैसे ये 5 है, रेटिंग कर देते हैं, 5 है स्ट्रांगली एग्री, ये 4 है, अनडिसाइडेड न्यूट्रल 3 है, डिसएग्री 2 है, स्ट्रांगली डिसएग्री 1 है। तो इसको पॉइंट में ऐसे करके हम देते हैं, जैसे 1 में रहेगा स्ट्रांगली डिसएग्री, 2 में रहेगा डिसएग्री, 3 में रहेगा अनडिसाइडेड, 4th में रहेगा एग्री, 5th में रहेगा स्ट्रांगली एग्री, ऐसे, ठीक है, क्लियर। आप देखिए किस पर्पज में ये स्केल यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, ये लास्ट जो मेथड है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है थेमाटिक अपरसेप्शन टेस्ट, टैट जो बोलते हैं, थेमाटिक अपरसेप्शन टेस्ट। अच्छा, इसमें क्या है, कोई एक एम्बिगुअस पिक्चर को दे दिया जाएगा, कोई ऐसे एक पिक्चर दे दिया जाएगा, आप उसके ऊपर स्टोरी निकालो। कोई एक एम्बिगुअस ऐसे पिक्चर दे दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा इसको ऑब्जर्व करो, ये एम्बिगुअस पिक्चर को, वो पिक्चर में क्लैरिटी नहीं है मगर आप एक स्टोरी निकालो, ये क्या है। तो उसमें क्या है, जो पर्सन का जो फीलिंग्स है, उसका जो अंडरलाइंग थॉट्स है, उसका जो पर्सन का पर्सनालिटी है, उसको हम डिटेक्ट कर पाएंगे। ये है प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यूज एम्बिगुअस पिक्चर्स। हम एक सिचुएशन देंगे जो बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन, एम्बिगुअस पिक्चर मींस बहुत कंफ्यूजिंग, वो क्लैरिटी नहीं है पिक्चर में, सिचुएशंस क्लैरिटी नहीं है, और स्टिमुली टू अंडरस्टैंड। तो वो पिक्चर को, वो एम्बिगुअस पिक्चर को ऑब्जर्व करेगा और वो एक स्टोरी को बोलेगा, हाँ ये पिक्चर ये है। और कोई किसी को पूछ लो भाई एम्बिगुअस, वो और एक स्टोरी अलग तरीके से लिखेगा। तो उसमें हम पर्सन्स का पर्सनालिटी, फीलिंग्स और अंडरलाइंग थॉट्स को हम डिटेक्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टैट है, थेमाटिक अपरसेप्शन टेस्ट, द पर्सन इज शोन an ambiguous picture and asked to make a story about it। वो एक ambiguous पिक्चर दे देंगे, पिक्चर में क्लैरिटी नहीं है, ओके, तो पिक्चर को वो देख के वो एक स्टोरी लिखेगा। वो स्टोरी जब लिखने के बाद हम देखेंगे कि पर्सन का पर्सनालिटी क्या है, उसका फीलिंग्स क्या है, इसका अंडरलाइन, कोई उसको पॉजिटिवली स्टोरी लिखता है, कोई नेगेटिवली स्टोरी लिख सकता है। तो उसमें हम पर्सन का पर्सनालिटी को मेजर करेंगे, फीलिंग्स को और उसका अंडरलाइन थॉट्स को। वही है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। तो 8 मेथड से, ओके, मेजरमेंट का, ठीक है, सबको मैं अच्छे से डिस्कस किया। अभी हम एमसीक्यूज को चलेंगे। 12 एमसीक्यूज है। क्वेश्चन नंबर 1, करेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे। स्टेटमेंट 1, द प्रोग्नोसिस फंक्शन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस बाय यूटिलाइजिंग टेस्ट आउटकम्स टू प्रेडिक्ट फ्यूचर बिहेवियर। प्रेडिक्ट फ्यूचर आ गया, बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। The diagnosis function differs from the prognosis function because diagnosis identifies specific learning weaknesses and establishes a cause-effect relationship. Correct है? Research function is the best frequently applied function of measurement compared to prediction and diagnosis because test scores are readily available. ये जो दिया है रिसर्च फंक्शन कंपेयर्ड टू प्रेडिक्शन एंड डायग्नोसिस, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, स्टेटमेंट गलत है। रिसर्च फंक्शन को हम क्यों कंपेयर करेंगे प्रेडिक्शन एंड डायग्नोसिस के साथ? वो एक स्पेसिफिक फंक्शन है, वो क्या करेगा, टेस्ट, उसको ऑब्जेक्टिव स्कोर चाहिए, ऑब्जेक्टिव डाटा, एक्यूरेट डाटा चाहिए, और वो उसको लेके एनालाइज करेगा इंडिविजुअल्स में, ग्रुप वाइज में, मेथड्स में, और फिर हाइपोथेसिस निकालेगा। हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाएगा, वो टेस्ट करने के बाद वो देखेंगे फेवरेबल की अनफेवरेबल, यदि फेवरेबल है उसी को इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। ये गलत है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लाइक क्लासिफिकेशन, ग्रेडेशन एंड प्रमोशन ऑफ स्टूडेंट्स प्राइमरी डिपेंड ऑन द डायग्नोस्टिक, नो, ये प्रोग्नोसिस। हम अभी प्रेजेंट टेस्ट करेंगे, उसी से हम क्लासिफाई करेंगे कि फ्यूचर में वो कौन सा सब्जेक्ट लेगा, साइंस सब्जेक्ट लेगा ना ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट लेगा, कि हम ग्रेडेशन करेंगे
कि हम ग्रेडेशन कर सकते हैं। अभी प्रेजेंट टेस्ट को लेकर हम ग्रेडेशन कर देंगे कि फ्यूचर में उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत टॉप लेवल में रहेगा, ए ग्रेड में रहेगा, बी ग्रेड में रहेगा, कि सी ग्रेड में रहेगा। ग्रेडेशन की प्रमोशन, कि अभी हम टेस्ट कंडक्ट किया, हम ये प्रेडिक्शन किया कि डेफिनेटली द चाइल्ड एक्चुअली सिक्योर्ड गुड मार्क इन मैथमेटिक्स, सो ही विल प्रमोट हिमसेल्फ इन इंजीनियरिंग कोर्स लाइक दिस। सो ये डायग्नोस्टिक नहीं है, प्रोग्नोसिस है। तो यहां पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है 1 और 2, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप पूरा एवरी सेंटेंस को एनालाइज कीजिए। यदि कंटेंट के ऊपर आपका कमांड है तब आप आराम से आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 असर्शन रीजन है, ठीक है। असर्शन देखिए, ट्रेड्स सच एज ऑनेस्टी, परसिस्टेंस, पंक्चुअलिटी एंड ट्रूथफुलनेस आर प्रिडोमिनेंटली एवेलुएटेड यूजिंग ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स रादर देन द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव पेपर पेंसिल टेस्ट। करेक्ट है, क्योंकि ये जो ट्रेड्स है इसको जो पेन पेपर टेस्ट में हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, परसिस्टेंस, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, इसको हम ऑब्जर्व करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। करेक्ट है। रीजन, स्टैंडर्डाइज ऑब्जेक्टिव टेस्ट आर एक्सक्लूसिवली नॉन वर्बल एंड कैन नॉट असेस सोशल कंडक्ट और बिहेवियरल इंक्लिनेशंस। ये गलत है, क्योंकि देखो जो स्टैंडर्डाइज ऑब्जेक्टिव टेस्ट ओनली दिया है आर एक्सक्लूसिवली नो वर्बल भी है, क्योंकि नॉन वर्बल क्या है, वर्ड्स, जो सेंटेंस वर्ड्स ये सब है, मगर वर्बल भी है। आप देखा होगा अभी क्वेश्चन पेपर में वर्बल में कुछ सिंबल, कुछ पिक्चर, और स्टूडेंट्स उस पिक्चर को देखेगा, सिंबल को देख के फिर एक्सप्रेस करेगा, उसका ओपिनियन को एक्सप्रेस करेगा, तो वो वर्बल है। ये वर्बल है कि स्टैंडर्डाइज ऑब्जेक्टिव टेस्ट और एक्सक्लूसिवली नॉन वर्बल। नो, कुछ ऑब्जेक्टिव टेस्ट आप देखिए उसमें पिक्चर दिया जाता है और ऑप्शंस रेस्पॉन्सेस है, और कैन नॉट असेस सोशल कंडक्ट और बिहेवियर। आप देखिए इसमें कैन नॉट कंडक्ट, आप देखिए जो आईक्यू टेस्ट है, ठीक है, इसमें तो हम मेजर कर पाएंगे, ठीक है। जो असेस उसका चेक करेंगे, कैन नॉट असेस सोशल कंडक्ट और बिहेवियरल इंक्लिनेशंस, ऐसा नहीं। तो अभी जो टेस्ट सब पर्सनालिटी टेस्ट है, तो जैसे हमारा रेटिंग स्केल में रेटिंग मैंने क्या है, नंबर, जैसे 1 to 5 हम रेटिंग करते हैं, ठीक है। हाईली डिसएग्री 1 रेटिंग, डिसएग्री 2, न्यूट्रल 3, ओके, एग्री 4, हाईली डिसएग्री 5, ऐसे तो असेस कर सकते हैं। तो वो बोल रहा है स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव, तो असर्शन करेक्ट है मगर रीजन इनकरेक्ट 1, क्योंकि कोई स्टैंडर्डाइज ऑब्जेक्टिव टेस्ट वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है। यहां पर ओनली नॉन वर्बल पूछा है, नहीं वर्बल हो सकता है, सिंबलिक हो सकता है, पिक्चर्स हो सकता है, कोई सिचुएशन दे सकता है और रिस्पॉन्सेस देगा। और कैन नॉट असेस सोशल कंडक्ट और नहीं, इसे हम बिहेवियर को भी मेजर कर सकते हैं, रेटिंग स्केल के हिसाब से हम बिहेवियर को देख सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड जो रीजन इनकरेक्ट है, तो यहां पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा यहां पर एक ऐसा ऑप्शन दिया है कॉलम 1 और कॉलम 2, आपको डिटेक्ट करना है। देखिए रेटिंग स्केल इसमें आपको पॉइंट बेसिस में दिया है, एवेलुएट्स पर्सनल और सोशल ट्रेड्स अक्रॉस प्री डिफाइंड मल्टी पॉइंट ग्रेडेशंस 5.7 पॉइंट्स ऐसे। तो रेटिंग स्केल P3 होगा, ठीक है। चेकलिस्ट ओनली, आपको बोला था चेकलिस्ट ओनली वो क्वालिटी को देखता है, एस और नो। तो चेकलिस्ट आप देखिए, डायरेक्ट बाइनरी रिकॉर्डिंग्स ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, प्रेजेंट एब्सेंट एस नो, ये चेकलिस्ट 1 है, ठीक है, ये 1 चेकलिस्ट है, ओके, ठीक है। प्रोजेक्टिव टेक्निक जो है वो अनकवर सोशल कॉन्शियस एंड प्री कॉन्शियस डायनामिक्स यूजिंग एम्बिगुअस स्टिमुली, ये है 2 है। और ऑटोमेटिकली इंटरव्यू 4 होगा। तो उसमें देखिए P ये है, P3 है, Q1 है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। देखिए P3, Q1, R2 प्रोजेक्टिव टेक्निक, 2 अनकवर सोशल कॉन्शियस एंड प्री कॉन्शियस, देन जो एस है वो 4 है, एस्टैब्लिश रैपोर्ट टू एक्सट्रैक्ट ऑन एक्सप्रेस्ड इनर फीलिंग्स इन ए कॉन्जेनियल एटमॉस्फेयर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, according to the text, what is the key distinction between the predictive nature and of the prognosis function and the diagnosis function? इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, की डिस्टिंक्शन क्या है? अच्छा देखेंगे 4 ऑप्शंस गिवन।
Prognosis identifies cause-effect relationship, whereas diagnosis establishes simple correlational associations. ये गलत है. Prognosis reveals current characteristic levels for simple prediction, whereas diagnostic identifies weakness to establish a cause-effect relationship for remedial distress. यही correct है. Prognosis is qualitative and subjective, whereas diagnosis is strictly quantitative and objective. नहीं, गलत है. Prognosis deals exclusively with research hypothesis, whereas diagnosis deals only with administrative promotion. तो इसमें करेक्ट है बी. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. An educational researcher wants to study student attitude towards school policies, track latent personality conflicts via the thematic apperception test TAT, and record whether the physical safety equipment exists in the laboratories. Which combination? इसमें देखिए, अच्छा, an educational, which combination of tools corresponds strictly to these three objectives यहाँ पर दिया है. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव देखिए, an educational researcher wants to study student attitudes towards school policies. तो attitude towards school policies, attitude scale. तो फर्स्ट वन attitude scale होगा. ATT कर दिया. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव attitude scale. नेक्स्ट वन, track latent personality conflicts via the thematic apperception test. तो वो प्रोजेक्टिव टेक्निक आ जाएगा. सेकेंड ऑब्जेक्टिव. थर्ड वन, record whether physical safety equipment exist in the school. ओके, जो फिजिकल सेफ्टी इक्विपमेंट, तो एस और नो, तो वो चेकलिस्ट है. तो अभी हो गया आंसर. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. थ्री ऑब्जेक्टिव्स को आप देखिए कौन सा स्केल, कौन सा टेक्निक आप यूज करेंगे. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6. व्हिच एजुकेशनल डिसीजन डायरेक्टली रिलाइज ऑन द प्रोग्नोसिस फंक्शन ऑफ मेंटल मेजरमेंट. प्रोग्नोसिस फंक्शन ऑफ मेंटल मेजरमेंट. डिजाइनिंग टारगेटेड रिमेडियल लर्निंग मॉड्यूल्स. अच्छा, डिजाइनिंग टारगेटेड रिमेडियल लर्निंग मॉड्यूल्स ये डायग्नोस्टिक है. इन्वेस्टिगेटिंग अंडरलाइंग कॉज इफेक्ट भी डायग्नोस्टिक है. क्लासिफाइंग एंड स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स इनटू एकेडमिक, यही होगा ऑप्शन सी. क्योंकि हम जो प्रोग्नोसिस ये बोलता है, जो अभी प्रेजेंट टेस्ट हुआ, प्रेजेंट टेस्ट से हम डिटेक्ट करेंगे कि आगे में वो कौन सा स्ट्रीम में जाएगा. वो मैथ से अच्छा कर रहा है, इंजीनियरिंग में जाएगा. साइंस अच्छा कर रहा है, जैसे बायो केमिस्ट्री अच्छा कर रहा है, वो मेडिकल में जाएगा. सपोज सोशल साइंस में अच्छा कर, एसएसटी अच्छा कर रहा है, तो वो ह्यूमैनिटीज में जाएगा. ठीक है. तो आर्ट में अच्छा कर रहा है, आर्ट म्यूजिक में, वो कोई अदर वोकेशनल कोर्स में जाएगा. ठीक है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाई इज मेजरमेंट यूटिलाइज्ड लेस फ्रीक्वेंटली फॉर रिसर्च पर्पजेस कंपेयर्ड टू प्रेडिक्शन एंड डायग्नोसिस. मैं बताया था इसको स्पेशली मैं बताया था कि मेजरमेंट ज्यादा यूज होता है प्रेडिक्शन डायग्नोसिस में, मगर लेस यूज होता है रिसर्च में. ठीक है. जैसे हम ये बोलते हैं कि एक आईक्यू टेस्ट हुआ. आईक्यू टेस्ट जब अच्छा होता है, सपोज आईक्यू टेस्ट में अच्छा हुआ, तो हम प्रेडिक्ट करेंगे कि उसका जो फ्यूचर एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत बेटर होगा. और जब आईक्यू टेस्ट में वो बहुत उसको कम मिला आईक्यू टेस्ट में, तो हम बोल रहे हैं कि उसका लर्निंग गैप है, लर्निंग डिफिकल्टीज है, तो उसको रिमेडियल मेजर्स चाहिए. तो ज्यादातर ये सब क्या है, मेजरमेंट ज्यादातर आपका प्रेडिक्शन डायग्नोसिस में यूज होता है, रिसर्च में यूज होता है, मगर बहुत कम यूज होता है. ठीक है. आप बोलेंगे कि आईक्यू टेस्ट और रिसर्चर, आईक्यू टेस्ट ठीक है, हम इंटेलिजेंस टेस्ट करके उसका लर्निंग पाथ को डिसाइड किया, मगर रिसर्चर्स एक्चुअली दे नीड ऑब्जेक्टिव मार्क, पर्टिकुलर एकदम क्लियर मार्क उनको चाहिए. जैसे एमसीक्यू टेस्ट में जो मार्क होते हैं बहुत क्लियर होता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं. तो इसलिए बताया कि जो इस तरीके का जो टेस्ट होता है, पर्सनालिटी टेस्ट है कि आईक्यू टेस्ट है कि रेटिंग स्केल है, ये जो है जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ज्यादातर वो प्रेडिक्शन डायग्नोसिस, मगर रिसर्च पर्पज के लिए वो लेस यूज होता है. तो इसमें आप देख लीजिए, व्हाई इज मेजरमेंट. तो रिसर्च हाइपोथेसिस कैनॉट रिलाई ऑन ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल डाटा. मेजरमेंट टूल्स लैक स्टैंडर्डाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइंस. मेजरमेंट मस्ट अज्यूम कंप्लीटली वैलिड ह्यूमन क्वांटिफिकेशन. यही है. Psychological traits cannot be quantified on numerical scales. Measurement must assume completely valid human quantification.
जैसे कोई ह्यूमन ट्रेट है, ह्यूमन बीइंग का कोई ट्रेट, सपोज हम ये दे दिए बिहेवियर, बिहेवियर सपोज इसमें 80 मार्क्स, ओके, मैथ्स हम टेस्ट कर दिए, मैथ्स में वो रखा 85 मार्क्स, तो हम ये डिटेक्ट कर रहे हैं कि ही गॉट मोर मार्क इन मैथमेटिक्स बिकॉज हिज बिहेवियर इज गुड वन। तो इस तरीके का ये जो मेजरमेंट है, ज्यादातर क्वांटिफिकेशन जो होता है वो अज्यूम किया जाता है, तो इस तरीके का चीज को ज्यादातर रिसर्चर्स अवॉइड करते हैं, उसको लेके एनालाइज करना, हाइपोथेसिस निकालना, जनरलाइजेशन निकालना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो यहां पर जो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ आर आइटम्स सिस्टमेटिकली अरेंज्ड इन ए स्टैंडर्डाइज्ड साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल टेस्ट। जो स्टैंडर्डाइज्ड साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल टेस्ट होता है उसमें इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी, इन ऑल्टरनेटिंग ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन फॉर्मेट, इन रैंडम ऑर्डर ऑफ कॉन्सेप्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी। तो याद रखिए जो साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल टेस्ट होता है उसमें इंक्रीजिंग और इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी माने सिंपल टू डिफिकल्टी हम जाएंगे। तो साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल टेस्ट, जैसे आपका जो इसमें एक आता है हम इंटेलिजेंस आईक्यू टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, ओके, कि हम करेंगे एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इस तरीके का टेस्ट जो होता है वो साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल टेस्ट होता है। तो उसमें सिंपल टू डिफिकल्ट लेवल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई आर रेटिंग स्केल्स पर्टिकुलरली सुइटेबल फॉर इवैल्यूएटिंग पर्सनल एंड सोशल कंडक्ट। क्यों हम रेटिंग स्केल लेते हैं जब पर्सनल सोशल, जब क्लासरूम में चाइल्ड का बिहेवियर क्या है, ठीक है, तो हम वहां पर रेटिंग स्केल यूज करते हैं। रेटिंग स्केल में आपका जैसे आता है कि वेरी गुड, गुड, एवरेज, बिलो एवरेज, पुअर, तो ऐसे आपका रेटिंग स्केल में हम जैसे हम यहां पर कर दिए 5 में हम कर दिए वेरी गुड, 4 में गुड, सपोज हम बिहेवियर को मेजर करेंगे ऐसे 3 एवरेज, ठीक है, 2 बिलो एवरेज और 1 जो है पुअर, ऐसे करके हम रेटिंग स्केल करके हम ऑब्जर्व करेंगे, ओके, चाइल्ड का बिहेवियर को क्लासरूम में टीचर ऑब्जर्व करेगा। तो इसमें जो दिया है आंसर देखिए, दे अनकवर अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू एम्बिगुअस पिक्चर कार्ड्स। तो ये है टैट है, जो थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट, ये टैट है, ये टैट रिलेटेड है। दे रिड्यूस ऑल ट्रेट्स टू बाइनरी प्रेजेंस एब्सेंस, ये प्रेजेंस एब्सेंस जो है ये रेटिंग स्केल चेकलिस्ट है, ये चेकलिस्ट है। सी, दे मेजर द डिग्री ऑफ रिलेटिव नॉन वाटर टाइट ट्रेड्स, ठीक है, दे मेजर द डिग्री ऑफ रिलेटिव नॉन वाटर टाइट ट्रेड्स, यही होगा आंसर। दे एलिमिनेट ऑल सब्जेक्टिव जजमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल एवेल्युएटर्स। नहीं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डिग्री ऑफ रिलेटिव कंपेयर हम करते हैं, जब मैं अभी एक एग्जांपल दिया, आप रेटिंग स्केल करेंगे जो बिहेवियर के ऊपर, ठीक है, वेरी गुड, गुड, एवरेज, तो ये जो हम रिलेटिवली कंपेयर करके हम वहां पर देंगे कि वेरी गुड बिहेवियर, एवरेज बिहेवियर, कंपेयर करेंगे, तो डिग्री ऑफ रिलेटिव नॉन वाटर टाइट ट्रेड्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द प्राइमरी फंडामेंटल पर्पज ऑफ एडमिनिस्टरिंग एन एप्टीट्यूड टेस्ट। मैं बताया था जो एप्टीट्यूड टेस्ट है एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का पोटेंशियल और एबिलिटी को हम चेक करेंगे पर्टिकुलर स्किल के ऊपर, और उसी से उसका जो फ्यूचर लर्निंग पाथ को हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। सपोज एप्टीट्यूड टेस्ट उसका मैथ्स के ऊपर एप्टीट्यूड टेस्ट है, ठीक है, उसका पोटेंशियल क्या है, इसमें उसका एबिलिटी क्या है, मैथ स्किल, तो उसको देखकर हम डिसाइड करेंगे कि वो फ्यूचर में वो ये अच्छा स्किल है तो वो फ्यूचर में एक्चुअली इंजीनियरिंग चूज करेगा, जो सीएससी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वो चूज करेगा, क्योंकि सीएससी में ज्यादातर मैथ्स होता है, ओके, सीएससी जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में ज्यादातर एक्चुअली मैथमेटिक्स कंप्यूटेशनल कैलकुलेशन होता है, तो यही है। तो व्हाट इज द प्राइमरी फंडामेंटल पर्पज ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट,
बेसिकली evaluating past knowledge, no. Predicting future capacity to learn or perform. मैं जैसे बताया मैथमेटिक्स के ऊपर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसका मैथ स्किल को हम देखेंगे, अच्छा मैथ स्किल है, हम प्रेडिक्ट करेंगे वो फ्यूचर में इंजीनियरिंग ज्वाइन करेगा और सीएससी कोर्स लेगा, क्योंकि सीएससी में मैथमेटिक्स जो ज्यादातर आप कैलकुलेशन और कंप्यूटेशनल स्किल चाहिए, मैथमेटिक्स स्किल चाहिए, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11, which researchers originally developed the thematic apperception test at the Harvard Psychological Clinic in the 1930s? Stark R. Hathaway and J.C. McKinley, Henry A. Murray and Christiana D. Morgan, Johnny Exner and Bruno Klofer, Hermann Rorschach and Hans Zulliger. तो इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. एक्चुअली 1935 याद रखिए. These two, Henry A. Murray and Christiana D. Morgan, these two researchers originally developed the thematic apperception test, जो एक ambiguous figure, okay, आप एक पर्टिकुलर पर्सन को ambiguous figure दे दिया गया और उसको बोला गया कि आप इसके ऊपर एक स्टोरी, जस्ट यू राइट वन स्टोरी. ambiguous पिक्चर क्लियर नहीं है, वो स्टोरी लिखेगा, उसमें हम उसका जो पर्सनालिटी क्या है, कि उसका फीलिंग्स क्या है, ओके उसको उसका इनर फीलिंग्स क्या है, उसका पर्सनालिटी क्या है, उससे हम डिटेक्ट कर पाएंगे. ठीक है, यही है थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. आज का लास्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द स्टैंडर्ड टैट एडमिनिस्ट्रेशन, थेमेटिक, जो टैट मीन्स थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, व्हाट कोर नैरेटिव एलिमेंट इज द एग्जामिनी, what core narrative elements is the examinee explicitly instructed to generate? A factual recollection of real personal autobiographical memories, a physical description, artistic appraisal and symbolic meaning of the drawing, a list of associations to words spoken aloud by the examiner, the antecedent events, present thoughts and feelings, and the final outcome. Option D. क्योंकि टैट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, कोई एक वेरी कंफ्यूजिंग फिगर को दे दिया जाएगा, एम्बिगुअस फिगर, तो फिर आप उसके ऊपर स्टोरी लिखोगे, तो पिक्चर तो क्लियर नहीं है, तो आप उसका पुराना इवेंट्स को, कुछ इवेंट आपका माइंड में है, उसको देखकर आप स्टोरी, यही होगा ये पिक्चर, परहैप्स ये इस तरीके का घोस्ट होगा ये, क्योंकि ये पिक्चर स्कैरी लाइक है, तो आपका प्रेजेंट थॉट क्या आ रहा है वो पिक्चर को देखकर, क्योंकि पिक्चर में क्लैरिटी नहीं है, और आपका फीलिंग्स क्या है, और फिर आप फाइनल आउटकम निकलेंगे, नहीं ये पिक्चर जो ऐसा है ये यही होगा. ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. तो ये था आज का मेजरमेंट के ऊपर जो फंक्शंस एंड मेथड्स. ठीक है, फिर ये मेरा 5th पार्ट था, आप वेट कीजिए अपकमिंग पार्ट्स, बढ़िया बढ़िया पार्ट्स आएगा रिलेटेड टू मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन. आज इतना ही है. थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू.